Good evening, class 11 students. Welcome back. We are doing the chapter waves and we discussed till now standing waves. The last video we discussed about standing waves, which is a very important topic. We discussed longitudinal standing waves, that is organ types, and transverse standing waves, that is standing waves on strings. Today we will discuss the last topic, okay, that is beat. Now, what are beats? Now, if I want to show you in real life what are beats, okay, you go to a DJ. Okay, DJs has different LCD screens where the lights jumps, okay, jumps then down. Those are called beats. If you see like very old version VCR, or we can say the cassette player, we used to have a small cassettes like this, where we have ribbon type something. In the cassette inside there are two circular disc type. From there, over there the ribbons are wounded over, and by those ribbons, which is made of small, like we can say plastic, okay, those ribbon cassettes, the players of those ribbon cassettes has a small LCD screen where the lights can jump up and down. Okay, these jumps up and down shows beats. Now, what is basically beats? This is the theoretical concept. Just in practical life, if someone say beats can. So when we go to DJ, when we go to like for example a marriage ceremony where a reception is going on, where there is a DJ. So in DJ also we hear different types of sounds. Tick tack, tick tick tack. These are, what are these? These are what? DJs का जो साउंड निकल रहा है उस साउंड्स को हम बीट्स बोलते हैं. ओके, तो ये क्या होता है, कभी एक ही उसी टाइम में कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, इस टाइप का, इस वेरिएशन को हम बीट्स बोलते हैं. तो ये हुआ थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के कॉन्सेप्ट के बारे में. ना थियोरेटिकली बीट्स क्या होता है? बीट्स होता है कि लेट मी टॉक अबाउट डेफिनेशन. एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी फ्रॉम बुक. एवरीथिंग, सब कुछ बुक से पढ़ना, हम यहाँ पे से समझेंगे. What happens if I say two sound waves? Take two sound waves, okay, having same amplitude. कंडीशन क्या क्या है? उन दोनों साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए एंड नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी. नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? उनके बीच का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा वो बहुत कम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग फ्रीक्वेंसी 1 एंड फ्रीक्वेंसी 2. इनके बीच का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा वो लेस देन 10 हर्ट्ज होना चाहिए. Nearly equal frequency होना चाहिए and they must traveling in same direction. These are the three conditions satisfied. And if these two sound waves superimpose, now they superimpose. Okay, so what happens? For example, this is the superimposed waves. ठीक है? This is a superimposed wave. After superposition of two sound waves which are moving in the same direction, okay, having same amplitude but different frequencies, they superimpose. What happens at a particular point in the medium? Sometimes the intensity is increasing or decreasing. Intensity is increasing or decreasing at the same time. So at a particular position, not at the same time, sorry, at a particular position in the medium, when there are two sound waves like this, they superimpose, okay? They superimpose. If I take a particular position in the medium, ये एक medium इसका एक particular position ले लिया. For example, this is the origin. For reference, I am taking X. So at that particular position, if you see, sometimes the intensity is more, sometimes the intensity is less. Now, when we talk about intensity, ये तुम्हें याद रखना है, ये बुक में नहीं है, लिख के रखोगे. Intensity is proportional to amplitude square. In other way around, we want to say amplitude is increasing or decreasing at a particular position with time. So after some position, if we get such types of resultant wave where the amplitude is changing with time at a particular position. Okay, in standing waves, what happens? At a particular position, the amplitude was constant. It was not changing with time. But in beats, at a particular position, the amplitude is changing with time. Then that forms a beat. Clear? Sometimes वो maximum होगा, sometimes वो zero होगा. So this phenomena is called as beat. But to get this phenomena, we need these two types of sound waves having same amplitude, nearly equal frequency. If I say nearly equal frequency, I mean to say the frequency difference between the two sound waves must be less than 10 hertz and they must travel in the same direction. Okay, the main concept is what? That at a particular position in the medium, the amplitude is increasing or decreasing with time. And that is called as beat. Okay, now
We will discuss. This is all about the definition. Understood. What is a definition? The definition we understood. After the superimposed, what happens at a particular? I have break the whole definition into some important parts. Okay, at a particular position, intensity, that is, I can say amplitude, vary with time. Vary with time. So this phenomena is called as actually beat. ये phenomena को हम क्या बोलते हैं? Beat बोलते हैं. Okay. अब हमें तो कुछ चीजें समझनी है. First of all, what is one beat? One beat किसको बोलते हैं? For example, let at t equals to 0, intensity maximum था. Okay. Then at t1, intensity minimum हुआ. Then again at t2, intensity maximum हुआ. Then this is called one beat. Or at t3, intensity फिर से minimum हुआ. Then this is called one beat. So what is one beat? One beat is nothing but intensity, successive maximum intensity with a minimum in between. Successive minimum intensity, एक के बाद दूसरा minimum intensity with a maximum in between. So this is called one beat or this is called one beat. Okay. Now what is beat period? ये हो गया तुम्हारे पास one beat का definition मिल गया. तो beat period क्या है? The time difference between successive maximas with a minimum in between. That is, can I say the beat period is T2 minus 0 or T3 minus, ये बाद में बात करते हैं, T2 maximum T2 maximum T0. इन दोनों के टाइम डिफरेंस को जो है उसको बोलेंगे हम क्या? बीट पीरियड. और the time difference between two successive minimas with maximum in between. So in other way around, this also you can say T3 minus T1. This is also, both values will come as same. दोनों वाले same आएगा. So this is called beat period. I hope you understand what is beat period, class. Okay, so what is beat period? The time difference between two successive maximas with minimum in between is called as successive. एक के बाद दूसरा maxima, उनके बीच एक minimum होना चाहिए, क्योंकि उसी को one beat बोलते भी है. दो maxima आ गया बीच में minimum नहीं आया, उसको one beat नहीं बोलेंगे. दो minimum आ गया बीच में maximum आना ही चाहिए. Okay, उनके बीच का time difference is called beat period. Next, what is beat frequency? Beat frequency. I'm denoting it by nu b. ठीक है? तो beat frequency क्या होगा? Beat frequency होगा 1 by beat period. हो गया. ये basic formula. Okay. Later on, we will prove that the beat frequency is subtraction of the frequencies. ये हम later on prove करेंगे. Later on will be proved. Will be proved. अभी मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? हम बाद में ये prove करेंगे. पूरा डेरिवेशन में यही प्रूफ करना है. बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है. एक ही डेरिवेशन उसमें यही प्रूफ करके दिखाना है. That the beat frequency is the subtraction of the sound waves which are superimposing. Subtraction of the frequency of the sound waves which are superimposing. Here I have denoted the frequency as f. Here I am denoting the frequency as nu. So if you don't get confused, so better you can write like nu 1 and nu 2. Okay, इसको हम beat frequency बोलते हैं. In general basis, frequency is nothing but reciprocal of time period. Beat period का reciprocal frequency होगा. When you do this thing, okay, when you get the beat period value, if you do the reciprocal, you will get the frequency, the subtraction of the frequencies of the superimposing waves, two sound waves. Okay, so this is all about the small description. What is beat? So I'm repeating it again. Beat is nothing but the phenomena of variation in the intensity of sound at a particular position with time, which happens when two sound waves of similar amplitude and nearly equal frequency traveling in the same direction superimpose with each other. Okay. Now what is called as one beat? If we have two maximas with one minima in between, this is called one beat. Or two minimas with one maxima in between, this is called one beat. What is beat frequency? What is beat period? The time interval between two successive maximas is called beat period, or the time difference between two successive minimas is called as beat period. Okay. Now, a very important question comes, which is marked in the PDF, and you have seen that I have written here notebook. Why nearly equal frequency? Why nearly
इक्वल फ्रीक्वेंसी, दो साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी इक्वल क्यों होना चाहिए, एकदम नजदीक क्यों होना चाहिए। इक्वल तो नहीं होगा, मतलब बहुत ही छोटा कम डिफरेंस, मतलब 1 और 10 के बीच में होगा, और 10 और 11, 10 और 20 के बीच में होगा, लेस देन 10 वोल्ट्स होना चाहिए डिफरेंस। ओके, ऑलवेज दैट मींस नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी क्यों होना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्चुअली पहले मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी अगर नहीं भी हुआ ना तब भी बीट्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ओके, लेकिन हमको सुनाई नहीं देगा। प्रॉब्लम है हमको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि देखो ये सब किसने पढ़ा, इंसान ने पढ़ा। अब इंसान को जो सुनाई देगा उसी को वही तो लगेगा ना ये हो रहा है, जो नहीं दे रहा है वो नहीं होगा। ओके, तो एक्चुअल में बीट्स, ऐसा नहीं है कि बीट्स नहीं होता है, अगर फ्रीक्वेंसी दूर दूर हो तो बीट्स होता है, बट हमें कुछ सुनाई नहीं देता है। दैट इज द ह्यूमन प्रॉब्लम, ह्यूमन एयर प्रॉब्लम, उनके कानों का प्रॉब्लम है। हमारे बॉडीज में, हमारा आंख, हमारा कान में कुछ परसिस्टेंस होता है। Now what is this? First, let's talk about a little bit of persistence of vision, which you studied in class 10. Persistence of vision, जो क्लास 10 में पढ़ा ना, पहले वो पढ़ लेते हैं। Persistence of vision is 1/16 of a second. इसका मतलब क्या होता है? 1/16 of a second, एक सेकंड का 1/16 पार्ट। The persistence of vision मतलब ये है कि हम कुछ भी देख रहे हैं, जैसे मैं अभी फोन को देख रहा हूं, मेरे आगे कैमरा को मैं देख रहा हूं, ठीक है, ये कैमरा को मैं देख रहा हूं, ये मेरे आंखों के पीछे जो एक स्क्रीन है विच इज कॉल्ड एज रेटिना, उसमें इसका इमेज फॉर्म हो जाता है, इसलिए मुझे ये दिखता है, ठीक है। अब मैं अपने आंखों के विजन को चेंज करूंगा, स्क्रीन को चेंज करूंगा, मैं वहां देखना स्टार्ट किया, तो मुझे अभी वो ये ना कैमरा ना दिख के वो दिखने लगा, तो मेरे रेटिना की स्क्रीन में कैमरा का इमेज ना आके वहां का इमेज आ रहा है। डन। ये जो चेंज हुआ इमेज, ये चेंज 1/16 ऑफ अ सेकेंड के बाद होना चाहिए। क्यों? दैट इज नीड टू अंडरस्टैंड। हमारे आंखों के रेटिना में जो भी इमेज फॉर्म होता है वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक रह जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस, रहना, परसिस्ट करना ऑफ विजन। एनीथिंग विच आई एम सेइंग, दैट इमेज विच इज फॉर्म ऑन द रेटिना behind my eyeball, that image remain in the retina till 1/16 of a second. Okay, if any other image the eyeball try to capture before 1/16 of a second, retina cannot make a proper image, blurred हो जाएगा, दोनों इमेज एक दूसरे मिक्स हो जाएगा, and our nerve vessels which is connected to the end part of the eyeball to our brain could not identify the images. इसका मतलब अगर ऐसे ऐसे करूं तो मुझे कोई भी चीज ध्यान से दिखेगा, क्योंकि हमारे आंखों के बीच का जो रेटिना, पीछे का रेटिना है, उसमें स्क्रीन 1/16 ऑफ अ सेकेंड से पहले चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? सो दैट इज नॉट माय जॉब हियर, दिस आई हैव जस्ट गिवन अ स्मॉल एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ vision. Similarly, something called as by persistence of hearing. हमारे कानों में भी यही प्रॉब्लम है बेटा। ह्यूमंस के आंखों में भगवान ने ऐसे बनाया है कि आंखों कानों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिया है। प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे क्योंकि हेल्दी पर्सन का ही है, हेल्दी आदमी का भी यही होता है। सुपरमैन तो है नहीं हम लोग की हर चीज दिखेगा। ओके, परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग क्या है? परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग इज by persistence of hearing, any sound heard by human ear will remain for 1/10 of a second. That is called persistence of hearing. जो भी साउंड में सुन रहा हूं, वो साउंड वेव मेरे कानों में आ रहा है, मेरे कानों को एयर ड्रम को वाइब्रेट कर रहा है, एंड देन आई कैन हियर दैट साउंड। वो जो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन 1/10 ऑफ अ सेकेंड तक रहता है, तब जाके एडम नॉर्मल हो जाता है। अगर उस 1/10 सेकेंड से पहले अगर दूसरा वाइब्रेशन घुसे तो एडम दोनों को मिक्स करके वाइब्रेट करेगा और मुझे दोनों में से कोई भी साउंड क्लियर सुनाई नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए जब तुम लोग क्लास में बैठे रहते हो, टीचर बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, तो उन लोग सब कैमरे बात करते रहते हो आपस में, टीचर को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। क्यों? एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि सारे साउंड एक साथ कान में आ रहे हैं, तो कौन क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा उसको, क्योंकि हर एक साउंड
आने के बाद जो दूसरा साउंड आ रहा है उसके बीच में टाइम डिफरेंस 1/10 नहीं है। एक साउंड आ गया, उसके बाद दूसरा साउंड आने के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, दैट टाइम डिफरेंस शुड बी मोर देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ओके, देन ओनली आई कैन हियर टू डिफरेंट साउंड डिस्टिंक्टली। अगर ये दोनों मिक्स हो गया, देन वी कैन नॉट हियर द साउंड डिस्टिंक्टली। Clear? They will both together will try to vibrate the eardrums. Do you understand, class? So by persistence varying, any sound heard by human ear will remain for 1/10 of a second. Okay. Now, what is beat? One beat. मुझे beat सुनाई कब देगा? जब एक maximum सुनाई दिया, फिर minimum, फिर maximum. ये दोनों मुझे distinctly सुनाई देना चाहिए. दोनों maximum मुझे अलग अलग सुनाई देना चाहिए. Then only I can identify. Yes, this is beat. One beat हुआ. एक मैक्सिमम डिग, उसके बाद फिर से डिग। अगर मैं डिग डिग सुनाई नहीं देगा अगर दो बार मेरे को अलग से, तो मैं कैसे पता करूंगा भी डिग? और दोनों डिग डिग एक साथ आ गया तो हो गया, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। सो द टाइम डिफरेंस जो होना चाहिए वो 1/10 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए बेटा। हमारे क्या है, 1/10 ऑफ अ सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो फॉर हियरिंग वन बीट distinctly, the time difference between two successive maxima or minima, that is beat period, must be greater than 1/10 ऑफ अ सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ जब जो बीट पीरियड है वो ग्रेटर देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड होना चाहिए, तब जाके हमको समझ में आएगा, तब जाके वी कैन आइडेंटिफाई द बीट्स नाइसली। डन क्लास? ओके। अब बीट पीरियड, तो व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? तो दिस इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, न्यू बीट। ओके, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/बीट पीरियड। तो आई कैन से 1/न्यू बी इज ग्रेटर देन 1/10। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा? तो क्या प्रूव हो गया? दैट द बीट फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज होना चाहिए। दैट मींस कैन आई से इज लेस देन 10। And what is beat frequency? Subtraction of the beats. Not subtraction of the beats, subtraction of the frequency of the sound waves should be less than 10. Since beat frequency is the subtraction, so what is nu1 and nu2 are the frequency of sound waves. Frequency of sound waves superimposing, जो दो साउंड वेव सुपरइम्पोज करके बीट्स बन रहे हैं। ओके, therefore nu1 and nu2, therefore nu1 and nu2 must be almost equal to each other, nearly equal, almost equal to, exactly equal नहीं होना चाहिए, nearly equal, almost equal to each other होना चाहिए for proper hearing or distinct hearing of the beats. I hope you understand, class. Now this is all about the theory part. Beat क्या है, क्यों बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, बीट पीरियड क्या है, क्यों फ्रीक्वेंसी और साउंड वेव्स नजदीक होना चाहिए। सो देखो ये कहां से है? पोजिशंस ऑफ हेयरिंग से आया ना। अगर ह्यूमन में ये पोजिशंस ऑफ हेयरिंग होता ही नहीं तो ये कैसे नहीं बनता? मतलब बीट तो प्रोड्यूस होता ही है, हर वक्त बीट प्रोड्यूस होता है बेटा, चाहे फ्रीक्वेंसी इक्वल हो नहीं हो, नियरली इक्वल हो नहीं हो, हर वक्त होता है। द ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट, हमारा आदमी इंसान का कान सुन नहीं पाता है। तो हमारे इंसान के कान कब सुन पाएंगे? दैट इज द कंडीशन। Okay, now what's my next job? We will study this whole thing mathematically and we will prove that the beat frequency is subtraction of the frequencies. Okay? Okay class, now you will not find this topic in your book. The topic is, don't get confused, analytical method. ऐसा लिखा होगा analytical method. Okay? Now analytical method किस चीज का? For calculation of beat frequency and beat period. तो हम जब तुम्हें एग्जाम में पूछेगा तो they will say write the expression for beat frequency and beat period. ओके, तो हम ये पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? We'll take two sound waves of same amplitude and same nearly equal frequency, different frequency, nu1 and nu2, but almost equal है। Okay, now just to not get confused with the book,
आई विल टेक फ्रीक्वेंसीज एज एफ। न्यू वी सब सेम दिखता है तो मैं न्यू को एफ के हिसाब से लिखूंगा। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, मेरा जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है, मैं न्यू को एफ लिखूंगा, ठीक है ना। डोंट गेट कंफ्यूज, अगेन आई एम सेइंग प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। न्यू को मैं क्या लिखने वाला हूं, एफ लिखने वाला हूं। ओके, सो वी आर टेकिंग टू साउंड वेव्स डिस्प्लेसमेंट, टू साउंड वेव्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी क्या हो जाएगा, S1 R sin ओमेगा 1 t एंड S2 R sin ओमेगा 2 t। से एम्पलीट्यूड होना चाहिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। नाउ तुम्हारे जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी तक तो सर ने ऐसा कोई क्वेश्चन लिया था, अब ये क्वेश्चन क्यों लेने लगा, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स लिया था। अभी तक हमने ये लिया था, साइनिंग वेव्स के साथ जितना भी काम करते थे प्रोग्रेसिव वेव लेते थे, तो अब ये क्यों ले रहे? तो कोई टेंशन नहीं है बेटा, जस्ट टू मेक द डेरिवेशन सिंपलर ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन कहां से आता था। इफ यू डोंट रिमेंबर, गो टू द प्रीवियस वीडियो, गो टू इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ऐसे करके कर्व था, यहां पे एक पार्टिकल था P और यहां पे एक पार्टिकल था O। ये y डिस्प्लेसमेंट P वाले पार्टिकल का है और O वाले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट था वो था R sin ओमेगा t। So just to make the thing simpler, I am dealing with a particle at O। दोनों साउंड वेव्स का जो पार्टिकल ओरिजिन में है उसके साथ डील कर रहा हूं, तो मेरे पास पूरा डेरिवेशन सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। मैं इसके साथ डील करूंगा तो आएगा, बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसके साथ डील करने से मुझे ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा, मेक द थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई? व्हेन वी कैन डू द थिंग्स इन सिंपल वर्जन। डू यू अंडरस्टैंड क्लास? लेकिन अब जो स्टैंडिंग वेव्स के साथ डील करते थे वैसा क्यों करना पड़ता था, क्योंकि तब एक पर्टिकुलर पोजीशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था। अब यहां पे क्या है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं, एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है विद टाइम, तो वो अपने आप आ जाएगा ओरिजिन वाले पार्टिकल के साथ। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, सर कभी ये लिख रहे हैं, कभी वो लिख रहे हैं, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए क्यों लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं। तो अगर मैं R sin ओमेगा t प्लस माइनस k x लिखूं, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पार्टिकल व्हिच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। बट इफ आई डोंट राइट प्लस माइनस k, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल व्हिच इज एट द ओरिजिन, जो ओरिजिन में है। ओके, तो दो साउंड वेव्स गया ओरिजिन से, उस ओरिजिन में दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एनी टाइम t इज दिस। सो इफ द टू वेव्स सुपरइम्पोज after superposition at by superposition principle, the displacement of the resultant particle will be S1 plus S2। यही बोलता है थ्योरी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, रिजल्टेंट वेव का जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा उसका हो जाएगा S1 plus S2। तो चलो निकालते हैं R। now omega 1 can I say in 2 pi f1t। okay, या थोड़ी देर बाद में डालते हैं बेटा, ओमेगा 1t नहीं अभी डालते हैं, बाद में क्यों, 2 पाई f1t प्लस साइन 2 पाई f2t। ये कहां से आया पता चला, व्हाट इज ओमेगा 1, 2 पाई न्यू 1 को मैं f1 ले रहा हूं, व्हाट इज ओमेगा 2, 2 पाई f2। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, तो s इक्वल्स टू r। अभी कौन सा फॉर्मूला आ गया, साइन a प्लस साइन b। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2। सो a प्लस b बाई 2 में ऐसा कॉमन आ जाएगा, f1 plus f2 divided by 2, f1 plus f2 into cos a minus b by 2। तो a minus b by 2 pi t कॉमन हो जाएगा, f1 minus f2 by 2। तो ऐसा आ गया, 2 कैंसिल हो गया। फाइनली वी गॉट द रिजल्टेंट साउंड वेव्स इक्वेशन इज दिस, जो सुपरपोज करने के बाद आया, दैट इज दिस 2r sin pi t f1 minus f2 cos pi t f1 minus f2। ठीक है क्लास, अब अच्छे से कान फाड़ के सुनना बेटा, अच्छे से समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। व्हाट आर these are the equations of the superimposing wave, two sound waves having same amplitude, different frequency। what is this is the equation of the resultant sound wave which was produced after superposition of these two sound waves। That is only beats। तो कैन आई से बीट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, अब इस कोई भी वेव का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें होता क्या है, इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। यहां पे एम्पलीट्यूड होना चाहिए, उसके बाद साइन कॉस होना चाहिए, एम्पलीट्यूड होना चाहिए। तो यहां पे एम्पलीट्यूड कौन सा है, डोंट गेट कंफ्यूज, लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
एम्पलीट्यूड कौन सा, 2r तो है, अब साइन वाला है कि कॉस वाला एम्पलीट्यूड है वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे व्हेन वी आर डूइंग द स्टैंडिंग वेव्स, जब हम स्टैंडिंग वेव्स कर रहे थे तो मेरे पास ऐसा एक एक्सप्रेशन आता था 2r sin kx cos ओमेगा t समथिंग लाइक दैट। तो मुझे पता था कि एम्पलीट्यूड वाज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन स्टैंडिंग वेव्स एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। ये स्टैंडिंग वेव्स हो गया, एट दिस पोजीशन एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज मैक्सिमम एंटी नोड्स, और यहाँ पे नोड्स एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। एम्पलीट्यूड पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता था, सॉरी एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड नहीं करता था, पोजीशन पे डिपेंड करता था। एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड नहीं करता था, कोई भी टाइम में चले जाओ एम्पलीट्यूड एट दिस पोजीशन इज ऑलवेज मैक्सिमम, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड नहीं करता था, तो जो फैक्टर में टाइम होता था वो एम्पलीट्यूड नहीं, दिस इज द एम्पलीट्यूड बिकॉज एम्पलीट्यूड वाज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम। क्लियर, understood? Amplitude was not depending on time in standing waves, but in beats we know amplitude at a particular position is changing with time, that amplitude time पे depend करता है। तो अब हम इस फेनोमेना से लगाते हैं जहां पे टाइम होगा वो वाला एम्पलीट्यूड होगा। क्या यहाँ पे टाइम है, क्या पे टाइम है, दोनों में टाइम है। अब तो फिर से कंफ्यूजन, समझ में मैं क्या बोला, मैंने यहाँ पे क्या सोच के एम्पलीट्यूड लिया था कि एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड पोजीशन पे डिपेंड करता है इन स्टैंडिंग वेव्स। तो जिसमें टाइम होगा वो एम्पलीट्यूड नहीं होगा, जो इसमें टाइम नहीं है वो पूरा एम्पलीट्यूड है। अगर ये फैक्टर मैं यहाँ पे लगाऊं तो बीच में एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है, दैट मींस एम्पलीट्यूड चेंजिंग विद टाइम, एम्पलीट्यूड डिपेंडिंग ऑन टाइम, दैट मींस जिसमें टाइम होगा वो एम्पलीट्यूड होगा, इसमें टाइम हर जगह, यहाँ भी है यहाँ भी है। अगेन देयर इज अ कंफ्यूजन, दैट मींस ये भी एम्पलीट्यूड हो सकता है, ये भी एम्पलीट्यूड हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत पीछे का नॉलेज में पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है, बीट फ्रीक्वेंसी, सबट्रैक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है, वो यहाँ पे है। तो आई विल टेक दिस एज एन एम्पलीट्यूड। So 2r cos pi t f1 minus f2 into sine, so this is the amplitude sine pi t f1 plus f2, where this is what amplitude of the resultant wave f1 plus f2. Okay, what is a is the amplitude. तो कितना है आंसर a, what is a 2r cos pi t f1 minus f2. Now why we are interested in amplitude, we need to find beat period। तो मैं एम्पलीट्यूड पे क्यों पढ़ा हूं, घुसा पढ़ा हूं, मुझे तो बीट पीरियड चाहिए। तो अब देखो बैक कैलकुलेशन करते हैं, बीट पीरियड आएगा कैसे। व्हाट इज बीट पीरियड, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमस और टू सक्सेसिव मिनिमस। मैक्सिमम मतलब क्या, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, तो मुझे एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन मिल गया ना, इसलिए मुझे एम्पलीट्यूड तो चाहिए था ना। इस एम्पलीट्यूड के एक्सप्रेशन से मैं वो टाइम निकालूंगा, कौन कौन से टाइम में ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है ये पता कर लूंगा, माइनस करते रहो बीट पीरियड निकल जाएगा। कौन कौन टाइम में ये एम्पलीट्यूड मिनिमम है वो पता कर लूंगा, माइनस कर लो, सक्सेसिव मिनिमस का सब्ट्रैक्शन कर दोगे। The time difference between two successive maximas is called beat period, or time difference between two successive minimas is called beat period. So we need maximum and minimum amplitude time. We need to calculate those times when the amplitude becomes maximum or when the amplitude becomes minimum. That's why we need the amplitude expression. ठीक है? So I will now go for different calculation of time. देखूंगा कब कौन कौन से टाइम में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, कौन कौन से टाइम में एम्पलीट्यूड मिनिमम है। दिस इज माय जॉब। सो फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मैक्स, 2r कांस्टेंट है तो उसको भूल जाओ, cos पाई t f1 माइनस f2 मैक्स होगा, मतलब प्लस माइनस 1। ठीक है क्लास, प्लस माइनस 1 कब कब होता है, यहां होता है वहां होता है। इसी चीज हमने पढ़ाया था 0 पाई 2 पाई, तो कहने से cos ऑफ k पाई, और बेटर why to use k पाई n पाई। सो cos पाई t f1 माइनस f2 इज इक्वल टू n पाई। वहां से कौन सा टाइम निकल गया, देखो पाई पाई विल कैंसल आउट, दिख रहा है बेटा, n बाई f1 माइनस f2। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट डिफरेंट टाइम वैल्यूज वेयर n इज व्हाट 0 1 2 3, 0 डाले तो फायदा नहीं, तो 1 से स्टार्ट करो 1 2 3, ओके 1 2 3 एंड सो ऑन। सो व्हेन आई पुट डिफरेंट टाइम्स आई विल गेट डिफरेंट मैक्सिमस। सो नाउ ये थोड़ा मैं बुक से अलग लिख रहा हूं, देखो फर्स्ट मैक्सिमा टाइम t1, n के जगह 1 डालो, 1 बाय f1 माइनस f2, ओके। सेकेंड मैक्सिमा टाइम
जो सेकेंड मैक्सिमा होगा वो कब होगा, 2/f1 माइनस f2। फर्स्ट मैक्सिमम मिल गया, सेकेंड मैक्सिमम मिल गया। देयरफॉर व्हाट इज द बीट पीरियड, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमस। बीट पीरियड इज टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमस। सेकेंड मैक्सिमम माइनस फर्स्ट मैक्सिमम कर दो तो कितना आएगा, देखो 2 minus 1/f1 minus f2, this is beat period। therefore what is beat frequency, अब मैं beat frequency को fb से बात कर रहा हूं, this is what beat frequency 1 by beat period, that is f1 minus f2। प्रूव हो गया, the beat frequency is subtraction of the frequencies of the sound waves। ये कहां से निकाला मैंने, मैक्सिमा कंडीशन से निकाला। अब क्रॉस चेक करते हैं क्या मिनिमा के लिए भी सेम आएगा। फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मिनिमम cos pi t f1 माइनस f2 मिनिमम होना चाहिए, दैट इज 0। अब देखते हैं cos 0 कब को होता है, cos 0 होता है यहां पे और यहां पे, तो यहां क्या क्या आता है, odd pi by 2 होता है, 0 1 pi by 2 2 pi by 2 3 pi by 2 4 pi by 2 5 pi by 2 6 pi by 2 7 pi by 2, दैट इज odd pi by 2। तो odd pi by 2 को हम कैसे लिखेंगे, देखो cos pi t f1 माइनस f2 इक्वल्स टू cos 2n प्लस 1 pi by 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2n plus 1 pi by 2 where n equals to what, 1 2 3। now few students may get confused because in the previous derivation I have used here 2n minus 1, दोनों कर सकते हैं बेटा। हाँ, अगर मैं लिखूं cos pi, ओके cos 0 का जगह ऐसा लिखो 2n minus 1 pi by 2, ये भी सही है, लेकिन तब n स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 और तो समझ में आ रहा है क्लास, ओके सॉरी नॉट 0 से, तब स्टार्ट होगा 1 से, 1 डालोगे। अब जब 2n प्लस 1 ले रहा हूं तब मैं स्टार्ट कर सकता हूं 0 से, बट अब मैं 0 1 2 3 लाइक दिस। तुम ऐसे करो वैसे करो कैसे भी करो आंसर आएगा बेटा, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल फॉर्मेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। व्हेन वी टेक 2n plus 1 we start with 0 1 2 3 okay, and when we take 2n minus 1 we'll start 1 2 3 अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये होगा जब तुम यहां पे फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन करोगे तो n की जगह 0 डालोगे, जब इससे तुम फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन करोगे n की जगह 1 डालोगे, ऐसे सेम आएगा। देखो यहां पे n की जगह 0 डालो, कितना आएगा 0 pi by 2, यहां पे n की जगह 1 डालो, कितना आएगा 1 minus 1 2 minus 1 pi by 2, दोनों सेम आ रहा है बेटा। सो आइदर यू स्टार्ट विद 0 or we start with 1, so anything you want you can do it in that way, this is not a big issue, okay, वो समझ में आ रहा है बेटा। सो अब मैं थोड़ा बुक से अलग कर देता हूं, बुक में क्या किया है 2n plus 1 लिया है तो मुझे n 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहां पे क्या किया n 1 से स्टार्ट किया, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे 2n minus 1 कर देता हूं और दोनों में मैं n 1 से स्टार्ट कराऊंगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये समझ में आ गया। 2n plus 1 भी ले सकते हैं, 2n minus 1 भी ले सकते हैं। अगर मैं 2n plus 1 लूं तो n स्टार्ट होगा 0 से, अगर 2n minus 1 लूं तो n स्टार्ट होगा 1 से, तो अगर मैं यहां पे प्लस 1 लिया तो 0 स्टार्ट होगा, मतलब मैं फर्स्ट मिनिमा के लिए n 0 डालना पड़ेगा। अगर मैं ये लूंगा जैसे यहां पे क्या लिया मैंने, फर्स्ट मैक्सिमम के n की जगह 1 डाला ना, तुम n की जगह 0 भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सही होगा। क्लियर, बिकॉज बी टाइम पीरियड स्टार्ट तो होगा ना कहीं से, तुम वैसे भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। ओके क्लास, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए। तो अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो नेक्स्ट में मुझे 1 डालना पड़ेगा, नेक्स्ट में मुझे 2 डालना पड़ेगा, लेकिन यहां पे तुम अपने मर्जी से 0 नहीं डाल सकते बेटा, वो डिपेंड करता है 2n प्लस लिखोगे कि 2n माइनस लिखोगे। अगर प्लस लिखोगे तो 0 डालोगे, अगर माइनस लिखोगे तो n 1 से स्टार्ट होगा। दिस इज द मेन आइडिया अबाउट इट। So from the what I'm getting t, I'm getting time is equals to 2n minus 1, pi कटेगा 2 into f1 minus f2, ये सही है, 2n minus 1 2 into f1। So what are these times of minima? So we can say for first minima क्या करेंगे बेटा, n equals to क्या डालेंगे 1 डालेंगे, यहाँ पे क्या ओके 1 डालो तो 2 1 2 minus 1 1 by 2 f1 minus f2। okay, now for second minima n equals to क्या डालेंगे बेटा 2 डालेंगे, तो f2 कितना हो जाएगा 2 to the 4 minus 1 3 by 2 f1 minus f2। now what is that beat period? now beat period is subtraction of the successive minimas, successive minimas का subtraction, तो subtraction करते हैं 3
देखो यहां से 1/2 f1 माइनस f2 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 3 माइनस 1, 2 कट गया, क्या आया 1/f1 माइनस f2 आ गया ना, सेम चीज यहां भी सेम चीज है, यहां भी चेंज है। देखो व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी fb, reciprocal that is f1 minus f2. This is all about the derivation class. Okay, I hope you understand. Don't get confused with this part. 2 and plus 1 लेंगे, minus 1 लेंगे, क्यों लेंगे, कब लेंगे, both we can take. Okay, now we'll go to one of the numerical concept which you may definitely face a numerical regarding beats. Okay, okay class, now we'll go to the numerical concept. In your book it is under application of beats. beats को हम किसे यूज करते हैं, to find the frequency of unknown, we can say to find the frequency, find the unknown frequency. किसका, maybe tuning fork, maybe string, किसी का भी हो सकता है. We will discuss with respect to tuning fork, but that concept is applicable to anything. Okay, maybe there are few numericals where it will be applicable to the strings also. Okay, so I will not discuss totally with respect to tuning fork here, but here the main idea, the main agenda is, if we have two frequencies, two source, first we need to understand what is source. Source क्या है, वो source होना चाहिए tuning fork होना चाहिए, tuning fork हो सकता है, ठीक है, और sound base हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, और strings हो सकते हैं, और ऑर्गन पाइप्स हो सकता है. वो सोर्स कहां से आया, वो साउंड कहां से क्रिएट हुआ है, ऑर्गन पाइप से क्रिएट हुआ है, स्ट्रिंग से क्रिएट हुआ है, ट्यूनिंग फॉर्क से क्रिएट हुआ है, दैट इज अ सोर्स. क्लियर. अब तुम्हें दो सोर्स का फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी पता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी तुम्हें नहीं पता, लेकिन उन दोनों फ्रीक्वेंसी से जो बीट प्रोड्यूस हो रहा है वो पता है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ओके, टू sound source frequencies. If I say new one which is known to you, इसका वैल्यू तुम्हें पता होगा, and new two which is unknown, जिसका वैल्यू तुम्हें नहीं पता होगा, और तुम्हें बोला है कि m is the number of beats produced per second. beats per second मतलब beats कितना प्रोड्यूस हुआ तुम्हें पता है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड तुम्हें ये पता है. नाउ व्हाट इज योर जॉब, ये जॉब इज टू कैलकुलेट न्यू टू. ठीक है, क्या पता, क्या कैलकुलेट करना है, अननोन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है. इसके लिए तुम्हें और एक चीज दिया रहेगा एग्जाम में, दैट इज आफ्टर टेम्परिंग. मैं इन दोनों सोर्स के साथ, इन दोनों सोर्स में से एक है ये जो मुझे पता है, एक है ये जो मुझे नहीं पता. जो मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं पता इसके साथ मैं टेम्परिंग करूंगा. Now, tempering मतलब क्या? तो in a book it is written as by loading with wax or by filling the. Now, what is the loading and filling? Now see, loading and filling समझो पहले. ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी मान लो 256 हर्ट्ज है. अब इसका लोडिंग मतलब क्या, और इफ आई से लोडिंग और इफ आई से फिलिंग, तो इसका मतलब क्या होता है. लोडिंग मतलब क्या, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसका जो स्ट्रिंग्स है इसको मैंने वैक्स लगा दिया यहां पे. मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसका वेट बढ़ा दिया. वेट इंक्रीजेस. इन अदर वे अराउंड, वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इसका फ्रीक्वेंसी मैंने डिक्रीज कर दिया. ये जानना बहुत जरूरी है. क्या कर दिया, तो लोड करूंगा तो अब फ्रीक्वेंसी घट जाएगा. पहले मोटा मास हो गया तो वाइब्रेशन कम होगा तो फ्रीक्वेंसी घट गया. ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोडिंग. तो तुम्हें एग्जाम में ना लोडिंग वोडिंग नहीं दिया रहेगा, तुम बोलेगा उसको मैंने बैक्स लगा दिया. दैट मींस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिक्रीजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी. तो तुम्हारे पास ये समझना बहुत जरूरी है, फ्रीक्वेंसी तुम्हारा जो मैंने टेम्परिंग किया, ये दिस इज कॉल्ड टेम्परिंग. मैंने छेड़खानी किया उस सोर्स के साथ. यहां पे वो सोर्स ट्यूनिंग फॉर्क, मान लो दूसरी जगह सोर्स स्ट्रिंग है, न्यूमेरिकल करेंगे. स्ट्रिंग में मैं क्या करूंगा, उससे क्या हो रहा है वो पता करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग, ये सब रफ में लिख लेना बेटा, थोड़े बाद में रफ कर दूंगा. स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए. वेलोसिटी का वैल्यू होता है √T/m. तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ.
Okay, velocity equals to frequency to wavelength. So what is frequency? Velocity of wavelength, right? Frequency into wavelength. तो frequency का velocity that is 1 by 12 under root t by m होगा. This is the formula for frequency in string. आप बोला कि string का टेंशन बढ़ा दिया तो frequency बढ़ा दिया, string का टेंशन घटा दिया मतलब frequency घटा दिया. These things you need to understand. Always एग्जाम में न्यूमेरिकल में लोडिंग ही किया, ऐसा नहीं बोले. तुम बोलेगा कुछ चीजें किया गया है, उस सोर्स के साथ कुछ किया गया है, तुम्हें समझना है कि वो जो कुछ किया है उससे उसका फ्रीक्वेंसी घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये समझना है. जैसे मैं यहां पे लोडिंग किया हूं, लोडिंग विद वैक्स, तो ये समझना नहीं है कि लोडिंग किया है, तुम ये समझना है कि लोडिंग करने से क्या हो, लोडिंग करने से क्या हो, फ्रीक्वेंसी घट गया. क्लियर. बस यहां पे मैं टेंशन बढ़ा दिया, टेंशन बढ़ा दिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. टेंशन बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी को क्या हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया. ओके. टेंशन घटा दिया तो टेंशन घटा दिया दैट मींस व्हाट, फ्रीक्वेंसी घट गया, दैट मींस दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस वन. इस कंडीशन में चला जाएगा. क्लियर. यहां पे जो भी होने वाला वही चीज यहां पे होगा. डन. अब फीलिंग मतलब क्या, ये जो मेरे पास जो ब्रेथ है, ओके, थिकनेस है, इस थिकनेस को मैं कम कर दिया, ऐसे करके थिकनेस को मैंने कम कर दिया. तो थिकनेस को कम कर दिया, मैंने वेट को घटा दिया, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस. फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, बढ़ गया, ये जानना है. तो इस केस में जो भी होने वाला है वही चीज यहां भी होगा. क्या होने वाला है, जो भी होने वाला वो चीज यहां मैलिट करेगा. जब टेंशन बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया. सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू रिलेट दिस थिंग विद दिस वन. सो अगेन आई एम टेलिंग अ स्मॉल जेस्ट इज दैट we need to find frequency of an unknown frequency of a source. Two sources will be given to you, sound source will be given to you. Those sound sources can be tuning fork, can be strings, can be organ pipes, anything. उन दोनों सोर्स के साथ एक का फ्रीक्वेंसी पता होगा, एक का फ्रीक्वेंसी नहीं पता होगा, लेकिन दोनों सोर्स से जो बीट्स प्रोड्यूस होगा वो तुम्हें पता होगा. दिस इज ऑल्सो नोन टू यू. अब उसके बाद कुछ टेम्परिंग होगा. टेम्परिंग समझ रहे हो, उसका टेंशन का वैल्यू घटा दिया, या उसको लोड कर दिया वैक्स के साथ, या उसको फिलिंग कर दिया, पतला कर दिया, या टेंशन बढ़ा दिया, तो टेम्परिंग होगा. वो टेम्परिंग मतलब क्या, टेम्परिंग हुआ मतलब क्या, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया घटाया. उस टेम्परिंग के बाद फिर से बीट कितना प्रोड्यूस हो वो तुम्हें पता हो. दैट विल बी गिवन टू यू. नाउ m1 is the number of beats per second after tempering. Now, if I say tempering, that means I'm talking about loading or waxing or increasing or decreasing frequency. So, in other way around, we can say loading, that is decreasing the frequency, or waxing, that is not waxing, filling, that is increasing the frequency. ठीक है क्लास. तो आफ्टर लोडिंग एंड वैक्सिंग m1 इज द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड आफ्टर टेम्परिंग. टेम्परिंग के बाद जो बीट है वो भी तुम्हें पता है. दिस इज ऑल्सो नोन टू यू. नाउ तो ये चार चीज तुम्हें पता होगा, ये तीन चीज पता होगा, 1, 2 और 3. तुम्हें उसको यूज करके निकालना है. ठीक है ना. ये कैसे होगा तो देखो, हाँ, न्यू2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू1 प्लस माइनस m होगा. इन दोनों के साथ या तो प्लस m हो सकता है या तो माइनस m हो सकता है. वी ओनली नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लस होगा कि माइनस होगा. ठीक है. उसको पता करने का तरीका क्या है. केस 1, इफ आफ्टर टेम्परिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, or we can say decreases, पहले वाला करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, दैट इज बाय लोडिंग. तो बुक में क्या लिखा हुआ है, ये पहला केस है, लोडिंग बाय वैक्स. लोड करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है. तो लोडिंग के केस में क्या होता है, इफ लोड करने के बाद फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने के बाद अगर m1 बड़ा है m से, अगर m1 number of beats produced after tempering, after loading is more than the initial beat produced, okay, then what is nu2? Nu2 is nu1 minus n. If beat produced less than n, then what is nu2?
न्यू टू इज M1 न्यू वन प्लस M। तो ये चीज एक लाइन में बुक पे लिखा हुआ है, देखो कैसे। इफ नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड ऑन लोडिंग ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, इफ नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस ऑन लोडिंग डिक्रीजेस, मतलब ये M1 number of beat produced decreases after loading, okay, then M would be positive। उसके बाद if number of beats per second loading unknown frequency increases, पहले से बड़ा है तो M will be negative। और ठीक इसका वाइसा वर्सा नेक्स्ट केस में, that is case 2। this is a very important question class, try to understand। if after tempering frequency increases, that is by feeding, this is one way of increasing the frequency। maybe strings का tension बढ़ा दे, there is another way of increasing the frequency। this is I am talking about one way। तो इस केस में फिर से A, if M1 is more than M, इससे जब बड़ा होगा तो माइनस आएगा, तो ये M2 क्या हो जाएगा, सॉरी बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा, न्यू वन प्लस M। और यहाँ पे उल्टा होगा, बढ़ गया तो नेगेटिव हुआ, घट गया तो पॉजिटिव हुआ, ये बढ़ गया तो पॉजिटिव होगा। और इफ M1 इज लेस देन M, आफ्टर लोडिंग नंबर ऑफ बिट्स घट गया तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा, न्यू टू इज न्यू वन माइनस M। क्लास डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? कुछ भी समझ में आया? मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया होगा, आपको गारंटी नहीं पता, नहीं समझ में आया होगा, ओके मुझे पता है। प्लीज रिपीट द वीडियो अगेन अगेन, व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन आई विल डिस्कस दिस थिंग अगेन क्लास, सो डोंट गेट वरी हियर। हम जब ये क्वेश्चन करेंगे ना, हम एक क्वेश्चन करेंगे तो मैं फिर से ये चीज थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा वापस, तो प्लीज डोंट लीव इट लाइक दिस, सी द वीडियो अगेन। आई नो इफ यू वॉच इट अगेन यू विल अंडरस्टैंड लिटिल बिट एक्स्ट्रा देन व्हाट यू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट गो, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ वेट्स, or we can say first numerical concept। now the second numerical concept is that ये एग्जाम में कभी-कभी पूछता है, for example nu1 and nu2 are the frequencies of sound waves, frequency of sound waves superimposed, then what is the frequency which we hear, frequency of sound heard by person after superposition, or we can say frequency of beat sound। जो साउंड होगा उसका क्या होगा, बीट का साउंड, बीट का फ्रीक्वेंसी नहीं, बीट के जो साउंड आ रहा है वो वाला फ्रीक्वेंसी, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एवरेज होगा दोनों का, ओके। नेक्स्ट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, वो तो मुझे पता है, सबट्रैक्शन होगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दीस थिंग्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज समथिंग डिफरेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हिच वी हर्ड इज समथिंग डिफरेंट। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट हमें जो सुनाई देगा वो सबट्रैक्शन होगा, और जो साउंड हमें सुनाई देगा वो एवरेज होगा दोनों फ्रीक्वेंसी का, ओके। इस रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल आता है क्लास, ओके क्लास। सो दिस इज द एंड, ओके। That's all class, thank you very much।